ठीक है। तो ये नेक्स्ट पोएम है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोएट एंड फेमस पोएट ऑफ आर हिस्ट्री। एंड इसके बाद एक चैप्टर में एक डिस्क्रिप्शन इसका इनका और आता है, पोएट्स एंड पैनकेक्स, नहीं, हाँ, पोएट्स एंड पैनकेक्स, उसमें भी आता है, बट फॉर्चुनेटली इस बार वो सिलेबस में आप लोगों के लिए कटवा दिया है स्टीफन स्पेंडर का। तो इन्होंने इंडिया भी विजिट किया था। और जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चैतन्य दे रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ कि डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहे हैं, ये हमारे देश की भी कहानी है, कोई कोई नई बात नहीं है। और ज़्यादातर अगर हम लोग इसको रिलेट कर पाए तो हम लोग ये देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स है हमारे इंडिया में, अगर हम लोग बात करते हैं, इनफैक्ट जो जगह तो इन्होंने नहीं बताई है कहाँ पे है, नहीं नहीं बता रखी है इसमें, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इस तरीके की कंडीशन उनको देखने को मिल रही है कि स्कूल के हालात ख़राब है, बच्चों के हालात ख़राब है, एंड दे हैव देयर ड्रीम्स, दैट किड्स दे हैव देयर ड्रीम्स, और वो किस तरीके से वो पूरा हो सकता है उसके बारे में ये बताया जा रहा है, ठीक है। सो या चैतन्य, योर व्यू पॉइंट फर्स्ट। Sure. So this poem starts with one part, and that is key. The poet is highlighting about four students. Basically, class के अंदर कई सारे students होंगे, but he is highlighting about the four exceptional students in this poem. First is a girl, and that girl, like, yeah, first is a tall girl. Then we are having a paper seaming boy, then a stunted child, and then we are having someone who is physically present in the class but mentally absent. The first girl, which is referred here, she is more or less bit depressed, and due to depression, pressure, that poverty, all these things, all these pressures have actually resulted that her head is bent down, a bit bent down. And then we are having a child who is पेपर सीमिंग. नाउ पेपर सीमिंग चाइल्ड विद रैट्स आईज. तो यहाँ पे जो चीज इन्होंने एक लिटरली डिवाइस जो इन्होंने यूज करके दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि हाउ दैट चाइल्ड इज बेसिकली फाइंडिंग समथिंग टू ईट in order to satisfy with his present water. Maybe he must be malnourished, and he definitely will be a poverty stricken child. After that we could see that a child, stunted child, yeah, stunted, unlucky hire of the twisted bones. So here the poet is basically highlighting about the main part, that is that this particular child he has hired, he is the successor of that particular bone disorder or that whichever biological disorder which was there in his father earlier, and it has been inherited by him. Biological inheritance has been done here. And after that he is talking about the child who is physically present but mentally somewhere else, mentally out of the class, thinking about those squirrels, trying that thinking that he'll play with them, or he'll fiddle with those squirrels and outside entities which are more tempting to him as compared to the lessons which are taught in the class. And after that he is highlighting about the situation of the classroom itself. So here he tell about that sour cream balls. Then this sour cream ball basically highlights that how dull, creamy, and black color is the walls, and that black color or that dull color does not only refer to the color of the walls, but it is also referring to the point that the future of all the children who are studying in that school, in that so-called well-developed establishment in the slum itself, their future is having no, their future is not promising. There is nothing on which they can rely, and they cannot extend towards that so-called blue sky or rise above the golden sand, as we said. And he, after this, highlights about Shakespeare's head, the doom, on all these things in collectively. अगर मेरे को इसमें बोलना है तो these things are something which is the outer world. They are referring to the outer world. For example, the map. तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, यहाँ पे एक stark contrast शो करने की इन्होंने कोशिश करी है, as कि this all these things, supposedly Shakespeare's head. Shakespeare is considered to be the father of old English literature and many of those great art and novel pieces which are written by him. But these children who are studying in this classroom, which is there in the slum,
इनका नॉलेज या फिर एजुकेशन की लाइफ से या क्वालिटी एजुकेशन की लाइफ से दे आर टोटली डिवॉइड ऑफ इट, and they are deprived of quality life as well. They are far away from the radiant life of knowledge, as it's prominently said. And after that, the world map. Now, this world map is something where यहाँ like prominently यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो rich हैं, they are educated, they are literate, and moreover these people, they do not want any connection with the slum children. They are not at all into this habit or into this mood of creating or understanding or being sympathetic towards those people who are facing some issue. And here they have also highlighted one aspect: we versus they. We means those people who are living in the world full of opportunity and splendor, versus them means those children, those basically that population where we can see that they are far away from the light of knowledge, and they have to face huge disappointments in their course of life, as well as उनका future कोई इतना promising नहीं है, क्योंकि they are devoid of everything, not even education but everything, the basic amenities even, those things even are not provided to these people. Yeah. And then he is highlighting about the current atmosphere of the slum as well as the children's, yeah, the children, sorry. So here he tells that they are catacombs. Catacombs over here is something which can be referred to as which is not desired. वो चीज वहाँ पे है, but still it is totally dark, and that darkness is also surrounded. That darkness also surrounds each and every student, each and every child which is studying in that classroom. और वो classroom slum के अंदर है. So that's why they have also highlighted that how this catacombs is personified as children in this poem. And yeah, after that again they come on to this, that all these things, these Shakespeare's head is wicked, though he is a great example of education, literacy and modern art, but still his example is a wicked one. Iska jo prominent reason what I could decipher by this is that even after this guy is a very great like poet and writer, but this his photo, his image is not giving or providing these children with something that is like in reality. Practicality में इसकी image का कोई भी use नहीं है, just because क्योंकि they are not having any connection with education or radiant life of knowledge. After that, they have highlighted about that break or break open till they break the town. That means कि these people, they might end up damaging the whole town, end up damaging the whole area. Not only that slum, क्योंकि अगर वो slum में है, अपना area अपने आप की conditions ही नहीं वो खराब करेंगे, they'll end up taking that whole town, that whole area into their own grips of negativity and underprivileged. Moreover, इसी poem के through, this person Stephen Spender has also there is an attempt to highlight the flash out basically the capitalist nature of current countries. किस तरीके से यहाँ पे जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, that's been accentuated, वो और बढ़ता जा रहा है जबकि वो कम होना चाहिए था. बट उसी के साथ ही साथ जितने भी रिच लोग हैं, there is an attempt, a very belligerent attempt from their side कि जितने भी ये मिडिल क्लास है या पुअर है, we should push them to that world of underprivilege जहाँ पे कुछ भी नहीं है, no opportunity, and उसके बाद we'll be totally oblivious towards their demands or towards their needs. ठीक है जी, ओके, elaborated and explained very well चैतन्य, थैंक यू वेरी मच. ठीक है जी, तो एक्चुअली में जो कहानी आपने बोली एग्जैक्टली वैसे ही डिपिक्ट यहाँ पे करी हुई है. ऑब्वियसली आपने इसको पैराफ्रेज किया, विच वाज गुड. ठीक है, तो आई गो लाइन बाय लाइन, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ लेते हैं. तो जैसे कि हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो व्हाट डज पोएम से दैट फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर. तो पहले यही बोलते हैं, सबसे पहली बात उन्होंने बोला कि जहाँ पे ये पोएम जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ओशन सी आसपास है, उनसे काफ़ी दूर इन चेहरों के बच्चों के ऊपर जैसे गस्टी वेव्स, बड़ी आप वेव्स देखोगे तो बड़ा डरावना भी कभी कभी लगता है,
और कभी कभी आपको खुशी भी देता है, डिपेंड्स कि वो किस टाइम आपको देखना चाहते हैं, तो डरावना भी नहीं होना चाहिए। तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस, तो हम कह सकते हैं इनकी शक्ल के भी 12 बजे हुए हैं, ठीक है। सो लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टाउन राउंड द पैलर, तो जैसे वो कहते हैं ना, जब रूटलेस वीड इसलिए बोला जाता है जब इन चीज़ों की हमें एक्चुअली वीड्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो दीज आर अननेसेसरी प्लांट्स विच ग्रो अपार्ट फ्रॉम योर एक्चुअल प्लांट, तो ये जब ग्रो कर जाते हैं तो हम उसको निकाल के फेंक देते हैं। ज़्यादातर आप खेतों में जाओगे तो आपको वीड्स उगते हैं, तो वीड्स इसलिए वो कहते हैं न्यूट्रिशन खाते हैं, तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। तो ऐसे ही इनके बाल बिखरे हुए हैं, इनकी शक्लें ख़राब हो रखी है। एक जैसे आपने डिस्क्रिप्शन दिया कि एक लंबी लड़की है, सर झुका के लेटी हुई है, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज़, ठीक है। तो पहला वेट डाउन हेड है, तो वेट डाउन हेड यहाँ पे दो तरीके से भी बोला गया है, थकी हुई भी है और सर पे बोझ भी है, दोनों चीज़ें डिपेक्ट कर रहा है। पेपर सीमिंग बॉय है विद रैट साइज, तो इन्होंने बोला बड़ा कांगड़ी सा लड़का है, आंखें बाहर है, तो मैल न्यूट्रिशन यहाँ पे शो कर रहा है एक चीज़। स्टंटेड लकी हायर है, ये भी एक मैल न्यूट्रिशन की तरफ भी बना रहा है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइडिंग अ फादर्स नाल डिजीज़, तो he had unfortunately been inherited of his father's disease, जो यहाँ पे इसको देखने को मिल रहा है। तो उसके जो पैर वैर जो है टेढ़े हैं यहाँ पे, या भी कुछ भी हाथ वाथ टेढ़े हैं, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this। और एक डिस्क्रिप्शन फिर यही दिया कि जो जहाँ से ये पोएम हमारे सामने आ रही है, पीछे जो क्लासरूम का पोर्शन है अंधेरा है, वहाँ पे अननोटिसलिंगली एक बच्चा बैठा हुआ है जो कि स्वीट है, यंग है, उसकी आंखें सपनों में खोई हुई है। दोनों चीज़ें, सपने ऑब्वियसली फ्यूचर को लेकर, और एक चीज़ जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल गेम स्क्विरल की वहाँ पे चल रही है, जो स्क्विरल है गिलहरियाँ ट्री रूम में खेल रही है, अदर देन दिस विच इज़ हैपनिंग इन द क्लासरूम। तो वैरायटी ऑफ स्टोरीज हमें इन 5-6 लाइनों में हमें देखने को मिल रहा है। तो देर इज़ अ स्ट्रगल, देर इज़ अ प्रेशर, देर इज़ अ ड्रीम, ठीक है, देर इज़ सम एस्पिरेशंस, और आपको डिजीज़ेस, काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इन शुरुआती लाइन में देखने को मिल रही है, विच इज़ प्रैक्टिकली उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश करी है। कहते हैं ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर हैड क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़ बेल्ड फ्लायरी टायरलोस वैली, तो जहाँ की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं दिस टायरलोस वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इज वर्ल्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। तो कहते हैं दीवारें अगर आप देखते हो, जब बहुत लंबे टाइम तक आप सफ़ेदी नहीं कराते हो, पेंट वाइट वॉश नहीं कराते हो, तो दीवार काली पड़ जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं। कहते हैं डोनेशन में उस दीवारों पे शेक्सपियर के पिक्चर लगी हुई है, एंड ऑब्वियसली शेक्सपियर रिप्रेजेंट वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल बीइंग ऑन दिस अर्थ, वॉज हाँ, आज भी इनको रेफ़र किया जाता है लिटरेचर में, जो है काफ़ी फेमस है। क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटी, ठीक है। तो डॉन, दोनों चीज़ों से बोला गया रेफ़र करने के लिए कि एक्चुअली में इनकी ज़िंदगी में भी जो है वो चमक लाना ज़रूरी है। दीज आर क्लाउडलेस, बिना बादल के हैं, हमें कुछ नहीं पता है क्या होता है, बट वहाँ पे देखोगे उन सिटीज़ में अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पोएम, कि हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, शाइनी शाइनी बिल्डिंग्स हैं, और बट इनकी लाइफ, ये जो बच्चे हैं इनकी लाइफ से वो चमक ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो वैली है, फ्लावरी वैली है, प्रॉस्परस वैली है, अच्छी जगह है, सब चीज़ें दिखी हुई है, बट साथ के साथ उन्होंने बोला क्लासरूम में एक ओपन हैंडेड मैप है अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया साथ के साथ कि इसकी जो इस मैप के जो वर्ल्ड मैप है उसके अंदर एक दुनिया और है, ठीक है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, तो कहते हैं खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करते हैं, अपनी दुनिया देखने की कोशिश करते हैं, बट दे आर समहाउ दे आर स्टक इन देयर डेस्टिनी, stuck at the whims and fancies of जो ये बड़े बड़े लोग हैं, because they don't want कि ये लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें। एक व्यू जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कहते हैं where all their futures painted with a fog, ठीक है। तो पेंट ज़रूर किया हुआ है, तो आप ये देख रहे हो एक आयरॉनिकल व्यू आ रहा है, दीवार जो है वो भी सावर क्रीम वॉल है, क्रैक्स आए हुए हैं, ब्लैक पड़ा हुआ है वहाँ पे, बट इसका इनका फ्यूचर भी जो है वो अंधकार में है, ठीक है, वो भी इस तरीके से चल रहा है। तो दैट डिपिक्ट्स द सेम थिंग। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, कहते हैं जहाँ ये रहते हैं छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं, कार्बन लेड इस तरीके से बिखरा हुआ है क्योंकि ये पोल्यूशन शो कर रहा है, उसमें ये बच्चे ज़िंदा रह रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो टायरसम एंड वेरी हेक्टिक, ठीक है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, तो देखिए वही कहते हैं कि इनको नदियाँ देखने को नहीं मिलती, ऊपर इन्होंने बोला है समुद्र नहीं देख पाते, केप्स नहीं देख पाते, और अंधकार इतना ज़्यादा, वो हेजीनेस, वो फॉगीनेस इतनी ज़्यादा हो रखी है कि ये जो है एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स वो भी नहीं देख पाते, तारे भी नहीं देख पाते,
ठीक है, और शायद कोई विश्वास दिला दे, कोई भरोसा दिला दे, वो भी शायद इनको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो कहते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल। तो ये कहते हैं व्हाट अबाउट दीज डोनेशन, कहते दैट डोनेशन, जो डोनेशन आपने शेक्सपियर की लगा रही है पिक्चर की, दैट इज़ अ विकेड एग्जाम्पल, दैट डज नॉट रिलेट, दैट डज नॉट गो विद जो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वट ही वॉन्टेड एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा। एंड मैप इज़ ऑल्सो अ बैड एग्जाम्पल। बैड क्यों है? क्योंकि आप मैप देखते हो क्लीन क्लियर, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, बट ऑब्वियसली जहाँ पे ये क्लासेस हो रही हैं, जहाँ पे ये बच्चे बैठे हैं, उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग टू स्टील, कहते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है जब भी देखते हैं, इसके बारे में सुनते हैं, तो बच्चे चाहते हैं कि हम ये सब चीज़ें देखें, इनमें गुम हो जाए, इसमें सैर करें, बट नहीं हो पा रहा है। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, तो अल्टीमेटली दे आर कहाँ पे स्टक, दे आर स्टक्ड इन वो छोटी छोटी तंग गलियाँ, तंग, वो डेस्टिनी उनको वहाँ पे लेकर आ चुकी है, एंड उससे बाहर वो नहीं निकल पाते, चाहे जितनी भी कोशिश ये बार कर ले। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कहते हैं सुबह है अंधकार, और अंधकार में ही ज़िंदगी बीत रही है, दैट डार्कनेस में ज़िंदगी बीत रही है, एंड भी उसमें हो जाती है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, स्लैग हीप कूड़े का ढेर बोलते हैं, बिकॉज स्लम में रह रहे हैं तो वहाँ पे कूड़े का ढेर बड़ा नेचुरली हो जाता है। स्लैग हीप का मतलब एक बोर्ड के क्वेश्चन में 2017-18 में आया था, व्हाट डू यू मीन बाय स्लैग हीप। तो इस पर सो रहे हैं, बैठे हैं, खेल कूद भी इसी पे हो रहा है। वियर स्किन पीप थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, तो कहते हैं शरीर में जो है मसल्स नहीं है ना, शरीर में मांस नहीं है, ऑल वी कैन सी इज़ देयर बोन्स, ठीक है, हड्डियों का ढांचा हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। चश्मे इन्होंने पहन रखे हैं, ऑब्वियसली वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमने ऐसे ऐसे चश्मे पहन रखे हैं, बट ये स्टील के चश्मे हैं जिसके शीशे भी टूटे हुए हैं, चकनाचूर हो रखे हैं, वो चश्मा भी इन लोगों ने पहना हुआ है, जैसे वो हेरा फेरी में बाबू भैया का था। ठीक है, सो विद मेंडेड ग्लासेस लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ठीक है, मेंडेड ग्लासेस है तो वो जब आप बॉटल फोड़ देते हो तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं पत्थरों पे, उसी को जोड़ के शायद उन्होंने देखा हुआ है। तो ये भी देखो क्या कर रहा है, 3 लेवल्स पे वो डार्कनेस है, ऑलरेडी एक स्लम में रह रहे हैं, लेड स्काई है, फॉगी नाइट है, एंडलेस नाइट है, और चश्मे से भी नहीं आपको क्लियर दिख रहा है, तो इनका फ्यूचर एकदम ब्लीक है, फ्यूचर में कुछ नहीं रखा है, इनको ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स। सो ऑल ऑफ देयर टाइम, जो कि मैंने बोला, एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, पूरा टाइम, पूरा वक्त, पूरी जगह क्या है, सिर्फ स्लम, सिर्फ स्लम, सिर्फ स्लम। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम, तो कहते हैं इनके जो स्लम है एक बहुत बड़ा धब्बा है, ठीक है, सोसाइटी पे, पहली बात, सिटी पे, कंट्री पे, एंड पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है, बहुत बड़ा धब्बा है, और इस कहते तो हैं इस धब्बे को हटाने की कोशिश करते हैं, बट ये एक विनाश की तरफ है, डिस्ट्रक्शन की तरफ हमें लेकर जाता है, इतना बड़ा धब्बा है, ठीक है। सो कहते हैं ऑब्वियसली हमें एक क्लैरियन कॉल की ज़रूरत है, ठीक है, वी नीड टॉर्च बेयरर्स, वी नीड दोज पर्सन हु कैन ऑब्वियसली टेक देम टू द गुड थिंग्स, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट करता है, ऑब्वियसली स्टीफन स्पेंडर बोल रहा है, बट यहाँ पे 2 व्यूज़ आते हैं, या तो स्टीफन स्पेंडर बोल रहा है या वो आम जनता बोल रही है कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर ये लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो शायद ये तरक्की नहीं कर पाए। सो दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, कहता है नहीं तो ये मैप और ये जो जगह है जहाँ पे ये इन्हीं की ज़िंदगी ऐसे रह जाएगी तब तक ये इनिशिएटिव, अनटिल एंड अनलेस दे डोंट टेक एनी इनिशिएटिव, और इनकी लाइफ जो है कैटाकॉम्स की तरह बंद हो जाती है। कैटाकॉम्स एक्चुअली पुराने टाइम पे डेड बॉडीज़ प्रिजर्व करने के लिए रखी जाती थी, ठीक है, और पेरिस इटली मोस्टली कैटाकॉम्स के ऊपर ही बनी हुई है, एक्सेस नहीं होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ही एक्सेस है, ठीक है, तो वो अंधकार है, डर है, फियर है वहाँ पे, तो कैटाकॉम्स में ऐसे ही होता है। तो ये इसी तरीके से इनके ऊपर मुंह पे मार दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो कहते हैं ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तो बिकॉज अब देखो क्या है, ऊपर ये उस वैली और टाउन का बात कर रहे हैं, टाउन की ही बात कर रहे हैं, तो कहते हैं सबको तोड़ो, ये जो जंजीरों में, ये शैकल्स में आप फंसे हुए हो, इसको तोड़ो। शहर, नॉट लिटरली इन्होंने बोला कि शहर तोड़ने की बात करिए, पर वो शैकल्स को तोड़ के इन शहरों से बाहर निकलो। देखो, यू हैव लाइफ, यू हैव मोर देन लाइफ, आपको चीज़ें बाहर मिल रही हैं, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। एंड इसलिए इन्होंने बोला, क्योंकि साथ के साथ ही आता है, शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, है ना, हरियाली दिखाओ, पहाड़ दिखाओ, पत्ते दिखाओ, उनको उनकी ज़िंदगी बनाओ। रन एज्यूरे ऑन गोल्ड सैंड्स, कहते हैं बीच पे लेके जाओ, वो जो बीच की मिट्टी है हाथों में लेके, हाथ से फिसले। लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, कहते हैं इनको पढ़ने के लिए 2 किताबें फ्री पढ़ें, बिना टेंशन के, बिना डर के, सपोर्ट के साथ ये पढ़े, खुश होके पढ़े, प्यार से पढ़े।
इनटू द बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। तो इन्होंने बोला वाइट तो एक अपनी जगह हो गया किताब का, एंड ग्रीन इन्होंने बोला नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ऑब्वियसली इनको नेचर दिखाना ज़रूरी है क्योंकि एक जगह स्टक हो रखे हैं। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इन्होंने बोला कि हिस्ट्री इज़ देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। तो कहते हैं सूर्य जिस तरीके से प्रकाश दिखाता है, सूर्य सन शाइन्स डेली ऑन डेली बेसिस, ठीक है, सब चीज़ें कर रहा है। तो वो कहते हैं अल्टीमेटली जब जो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे होते हैं वो वही होते हैं, उसको हम लोग सन से कंपेयर कर सकते हैं कि वो ऐसा चमकता हुआ बने, ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करे कि उसकी शाइन को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बात बोली है। तो दिस वॉज द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इंटरेस्टिंग। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हमारी दो पोएम्स थी। आई होप इतना ही आज के लिए सफिशेंट रहेगा। Yes, yes, sir. हाँ, तो इसके क्वेश्चंस एक बार रेफ़र कर लेना, स्टैंजाज वगैरह चैतन्य। बाकी जब भी हम मिलते हैं अभी फॉर द टाइम, अभी नेक्स्ट वीक वगैरह, तो हम इसके बाद में फिर जो भी होगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क और कुछ? No. ठीक है, Clear. ये दोनों poems they are clear. ठीक Totally. है, ठीक है, चलो। सो थैंक यू वेरी मच चैतन्य फॉर योर व्यू पॉइंट्स एंड थैंक यू फॉर योर क्लास। Thank you, sir. बाय बाय, कल मिलते हैं फिर। हाँ, Thank you. Sure, sir. थैंक यू, Thank you. बाय Bye. बाय।